welcome to this new class, BA Economics Honours Semester 1. I am Sunita Rani from Government National College, Sirsa. I want to tell you first of all about the book we will study for English is Language and Literature Part 1. In this book there are 10 chapters. The name of first chapter is Speech Sounds in English. We will be doing this chapter, Speech Sounds. It is like a practical chapter. In this chapter we will do not letters but speech sounds. In English alphabets we have 26 letters, but in spoken English the speech sounds are there. Speech sounds are 44 in number, not 26. These speech sounds are 44. While speaking English, while pronouncing words, these speech sounds are to be studied well. In these speech sounds are divided into two different categories. The most basic categories being vowels and consonants. The meaning of the word is completely changed. Even though the two sounds in the case are very similar, sounds are quite different from each other. I want to explain to you. In English we use 44 speech sounds. English alphabets we have 26 and there are 5 vowel sounds. Vowel sound means swar. Consonants means vyanjan. So this slide means these 44 sounds are divided into two parts. One is vowels means swar and second is consonants, it means vyanjan. So vowels are 20 in number, not 5 like English letters. The vowel sounds 20, these are in number. And these vowel sounds are further divided into two categories. इन स्वरों को फिर से दो भागों में बांटा जाता है, जिनको कहते हैं फर्स्ट वन प्योर वाउल्स, इसका दूसरा नाम होता है मोनोफ्थोंग्स, MONOTHONGS, एंड सेकेंड पार्ट इसका होता है डिफ्थोंग्स. फर्स्ट इज कॉल्ड pure vowels or monophthongs and second category is called diphthongs, DIPHTHONGS. Next comes consonants. Consonants होते हैं व्यंजन. तो these consonants are 24 in number. 24 व्यंजन, 20 vowels स्वर. Consonants 24 व्यंजन. इन स्वरों को फिर से दो हिस्सों में बांटा जाता है. फर्स्ट इज प्योर वाउल्स, आई हैव टोल्ड यू, विच आर कॉल्ड मोनोफ्थोंग्स, एंड सेकेंड कैटेगरी इज कॉल्ड डिफ्थोंग्स. दीज वाउल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर इन मीनिंग. Various letters and letter combinations known as graphemes are used to represent the sounds. So these are 44 sounds, but in written form we have to use symbols. इनको कॉपी पे दिखाने के लिए हमें सिम्बल्स की ज़रूरत पड़ती है, and these written symbols are called graphemes. These सारे vowels, सारे consonants, all the 44 sounds, these need written symbols when we have to write them on copy or register. These are called graphemes. तो these 20 vowel sounds are, इनकी जो शेप है, इनकी जो फॉर्म है, इनकी जो शक्ल है, वो इस तरह से होती है. शॉर्ट वाउल्स इन द IPARE. फर्स्ट वन जो स्लैंट्स में लिखा हुआ है, टेढ़े, उसमें टेढ़ी लाइनों में, इन स्लैंट्स इट इज E. पिट, PIT. फर्स्ट E, छोटी E कहाँ यूज़ होती है? पिट. यानी इस E को हम क्या मानकर चलें? हिंदी में जैसे मात्रा होती है, प को छोटी E की मात्रा ट.
इसी तरह से इंग्लिश में इस ई को हमने क्या मानना है, दिस ई इज ए वाउल साउंड। नेक्स्ट इज पेट, PET, पेट। इट मीन्स स्लैंट्स में जो सिंबल दिया गया है, जो ग्राफीम दिया गया है, इट इज ए, पेट। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए। नेक्स्ट इज पैट, PAT, पैट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिसको एक बार उल्टी ई और एक बार सीधी ई लगा के स्लैंट्स में जो सिंबल है, इसको बोलते हैं ए, यानी पैट, PAT, पैट। तो दिस सिंबल इज कॉल्ड ए। पेट में क्या था, छोटा, पेट। और पैट में इसको हम कहते हैं पैट, ए। इसको हम थोड़ा लंबा करके बोलेंगे। नेक्स्ट इज कट, क ट। तो उल्टी वी वाला जो सिंबल दे रखा है, इट इज कॉल्ड अ। नेक्स्ट इज पुट, पुट मीन्स प को ऊ की मात्रा एंड ट, इसमें हम क्या यूज करेंगे, ऊ। इट मीन्स ये वाला जो ऊ है, यू जो डाला हुआ है, इट इज ऊ की मात्रा, प को छोटा ऊ, ट। तो उसमें हम सिंबल यूज करते हैं स्लैंट्स में जो दे रखा है, इट इज कॉल्ड ऊ। नेक्स्ट इज ओ, डॉग, DOG, डॉग। इसको इस तरह से लिखना है तुमने, छोटा लाइन लगा के इसके साथ डी टाइप इसको लिखना है, इट इज ओ। एंड नेक्स्ट इज अ, छोटा सा अ, स्मॉलर साउंड, अबाउट। जब हम अ को बहुत हल्का बोलते हैं, व्हेन वी यूज इट इन ए वेरी शॉर्ट फॉर्म, अबाउट। तो ये जो अ है, और एक अ था कट में, उससे थोड़ा लंबा, दोनों अ थे। उसके बाद आते हैं लॉन्ग वाउल्स। ये तो शॉर्ट वाउल्स थे, उसके बाद लॉन्ग वाउल्स, जिनको हमने थोड़ा खींच के थोड़ा लंबा बोलना है, दीज आर कॉल्ड लॉन्ग वाउल्स। जैसे एक छोटी मात्रा तुम्हें कराई, पिट में छोटी की मात्रा आती है, और वीक, इट टेक्स लॉन्गर ई। जब हम वीक बोलते हैं, व को बड़ी ई की मात्रा, एंड क, ये वाला बिंदियों के साथ जो ई लगा हुआ है, इट स्लैंट्स में, इट इज कॉल्ड ई, वीक। दीज आर लॉन्गर वाउल। सेकेंड वन इज आ, ए लगा के उसके बाद दो बिंदियाँ, इट इज कॉल्ड हार्ड। इसमें हम क्या कहते हैं, हार्ड, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट इज ओ, फोक, ओ लगा के, छोटा ओ, साथ में दो बिंदियाँ, 2 डॉट्स, इट इज ओ। नेक्स्ट इज अ, हर्ड, 3 डाल के विद 2 डॉट्स, इट इज अ, जैसे बोलेंगे हर्ड। एंड नेक्स्ट इज ऊ, बूट, ऊ, यू लगा के 2 डॉट्स, इट इज कॉल्ड ऊ। तो दिस ई, आ, ओ, अ and oo, these are longer vowels। ये आपके हो गए 12। फर्स्ट पार्ट शॉर्ट वाउल्स एंड सेकेंड पार्ट इज लॉन्ग वाउल्स। नेक्स्ट कम्स consonants। English has 24 consonant sounds। English has how many? 24 consonant sounds। These sounds are symbolized below। First is called p, second is b, then t। सबको हमने स्लैंट्स में रखना है। नेक्स्ट ड, ऐसे नहीं बोलना इसको, P, B, T, D, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे प, ब, ट, ड, क, ग, फ, व, स, ज, फिर थ, द, च, टी के साथ, ये लंबा एस, इट इज कॉल्ड श। नेक्स्ट इज ऑल्सो श प्लस अ श। जैसे हम बोलते हैं ट्रेजर, वहाँ पे इस श को यूज़ करते हैं। लॉन्गर 3, जो लंबा सा 3 लिखा होता है। नेक्स्ट इज च, ट प्लस श मिला के एक साउंड बनती है च। नेक्स्ट इज ज,
और जो रह गए नीचे वाली लाइन, द लाइन बिलो, ह, व, न, म, र, य, ng, and l. These are 24 consonant sounds. Again a table is given. This first one is E, second E, ship. Next U, then longer U, a, bed, then teacher, a, chota a, then longer a, bird, door, cat, a, then up, ulti V wala a, then a, far, then O, chota o, it is used in on. This is the list of consonants. P, B, T, D, already told to you. K, G, F, V, S, Z, M, N, H, L, R, V, Th, D, Sh, Sh, Ch, J, Y, and ang, sung, sing. This is called ang. जैसे sing, जहाँ भी ing लगता है वहाँ पे हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं. Next one, these are 8 diphthongs. 12 vowels we have done. 12 vowels हम कर चुके हैं, pure vowels. 20 बताए थे, उसमें 8 अभी रहते हैं. वो मैंने नाम बताया था आपको, diphthongs. वो वाले जो प्योर वाउल्स हैं, दे आर कॉल्ड मोनोफ्थोंग्स, एंड दीज 8 आर कॉल्ड डिफ्थोंग्स. व्हाई आर दे कॉल्ड डिफ्थोंग्स? मीन्स दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 साउंड्स. 2 प्योर वाउल को मिला के जब एक मात्रा बनती है, देन इट इज कॉल्ड डिफ्थोंग. ईयर, ई और अ को मिला दिया, these two are combined, it is called ear. इसको कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे हम लिखते हैं pear, P-E-E-R, P-E-A-R, D-E-A-R, deer. इसमें 2 साउंड्स की ज़रूरत पड़ती है, E and A, तो इसलिए वहाँ हम यूज़ करेंगे ear. Next is U and A. It is used in word poor. प को ऊ की मात्रा एंड उसके साथ लगता है अ, तो इसलिए दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ऊ अ, पुअर. ए एंड अ, पेयर. नेक्स्ट इज ए, पेई. पेई जब लिखेंगे, प को ए भी चाहिए और ई भी चाहिए, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2, ए एंड ई. देन ओ एंड ई, ओई, बॉय. आई, आई कहाँ लगता है? फ्लाई. फ, ल, आ एंड ई, आई. नेक्स्ट है आऊ, अ, उ, आऊ. और नेक्स्ट आऊ, आऊ. आऊ कहाँ लगेगा? अबाउट. ब के बाद आ एंड उ, अबाउट. क्लियर? तो दीज आर प्योर वाउल्स, देन diphthongs, then consonants. Total 44 speech sounds we have done. Next lecture में आपको syllable इनके बारे में बताया जाएगा, what are syllables. तो thank you so much. Today it's sufficient for this lecture.